कि मैं हर किसी को एक मौका दूं, हर उस बच्चे को छूऊं जिसकी ज़िंदगी कहीं कुलमिला रही है। आओ उसको फूल बनाओ। स्वेट थ्योरी है, उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें साथ चलती हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। Namaste ji. Hello friends, I'm Nishi Arora, an NLP life coach. I help people develop life skills and values to enable them to deal efficiently with the difficult situations in life, making them confident and psychosocially competent. I conduct workshops, talks and one-to-one life coaching sessions for the same. On my YouTube channel, I am dealing with these same difficult situations of life that people are facing on a day-to-day basis. Presently, the video series that you will be able to see on the channel are on overcoming fears, then making stress your superpower, skillful parenting, developing self-confidence, as well as self-empowerment. Friends, life is like a roller coaster with its ups and downs, twists and turns, and fears and excitement. Excitement is great, but where the fears are concerned, they need to be converted into excitement. Okay? So do watch my videos and enjoy the roller coaster ride called life with Nishi Arora. Thank you. Deserving people who work silently do not reach the position of receiving a Padma Shri or a Padma Vibhushan or a Bharat Ratna. Yet they diligently keep working towards enhancing the lives of other people, and therein lies their satisfaction in the achievements of the people whom they are helping. We wish to honor and recognize such people who are working silently yet admirably to enhance the lives of people. Hence, the creation of the Admirable Achievers Awards. Thank you. Today we have with us the principal of Kendriya Vidyalaya Kakinada, Mr. Satyanarayan Yadav. He has been recognized as the first recipient of the Admirable Achievers Award. Mr. Satyanarayan has transformed the lives of many students who have had the opportunity to come under his care and guidance. He believes that this noble profession of teaching should be performed with zeal and passion to shape the lives of students who will shape our futures. He has received many awards and accolades for his excellent work as a principal, a teacher, and as an administrator. The interview with him today will inspire many students to do well in life, to be better prepared for exams, and to face the challenges of life situations. So folks, keep watching, and I'm sure you will enjoy and learn a lot from this interview. Welcome, Mr. Satyanarayan. Congratulations on being recognized as the first recipient of the Admirable Achievers Award. Thank you, ma'am. I welcome you in my campus Okay, thank to you have so interaction much. with you. Yeah. Thank you so much. Please introduce yourself to our viewers. Namaste ji. Myself Satyanarayan Yadav, Principal Kendriya Vidyalaya Kakinada. I am doing this work from last 2015 as a principal in this institution, and this is the most noble profession in this world to motivate the coming generation and save their future, to produce them as a good citizen of the country. Okay. Mr. Narayan, I came to your institute last year in 2020 Yes, ma'am. to conduct the workshop, Overcome the Fear of Exams and Achieve Success, right? That is when I met you the first time. Yeah. The little time that we had to talk, we got to talk with each other. I was really impressed by all that you are doing for the students, really. It was like unbelievable for me to know that one person can mold and shape the lives of so many students. Since that time, I've been thinking that you should come into the limelight. People should know you, you see, and they should be inspired by the work that you are doing, okay? So here we are, you and I, for this very purpose. Thank you, ma'am. And I welcome you to the show. I welcome you in my campus to Okay. have interaction with you, and you are doing wonderful work Thank you so to much. recognize someone who is doing work silently.
Thank you so much. Yes. So let's get started to know you better. Okay. Yeah. तो मिस्टर नारायण, हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। शिक्षक बनने की प्रेरणा आपको कब और कैसे मिली? अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक पैदाइशी टीचर हूँ, तो ओके। इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो टैलेंट है ये मेरे प्राचार्य श्री सोहनलाल जी ने पहचाना। आप मेरे से जब बात करिए। जब मैं कक्षा 8वीं का छात्र था, अच्छा। उन्होंने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी कि 7th क्लास के बच्चे जब आपसे कोई प्रॉब्लम पूछें तो यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई सी। और इस काम ने मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन दिया लाइफ में कि मैंने इसको जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने देखा कि बच्चों के अंदर परिवर्तन करना और उनको ट्रांसफॉर्म करने में जो मज़ा है ना, वो किसी और चीज़ में है ही नहीं। ओके। तो मैं ये कहूँ कि आई वॉज बोर्न टू बी टीचर, तो इट इज़ नॉट एग्जेजरेशन, ओके। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू माई प्रिंसिपल। ओके। सो जब आप काकीनाडा केंद्रीय विद्यालय में आए थे, आपके ड्रीम्स और एम्बिशंस क्या थे? मेरे जो ड्रीम्स और एम्बिशन है वो हमेशा बहुत हाई रहे हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है अच्छी वैल्यूज़ देना बच्चों को और अच्छे Absolutely. एथिक्स को पास करना। हाँ जी, हाँ जी, और देश के अंदर जब नागरिक अच्छे सिटीजन होंगे, हाँ जी। मैं कलाम साहब को बहुत पढ़ता हूँ ओके। और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इसी प्रोफेशन में दी है। ओके। वो जब राष्ट्रपति थे तब भी टीचर ही थे, तो उनसे मुझे कंटिन्यू एक प्रेरणा मिलती है कि बच्चे को जो कुछ देना है आपको, वो बच्चे की ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है और वो आपको उसके ब्लड में होता है, उसके फ्लो में होता है। और मेरी जर्नल इंटरेक्शन में जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि मैं आज के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, 20 साल बाद जब आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ हो तब आप मुझे याद करेंगे, तो मैं सक्सेसफुल टीचर हूँ। ओके। तो मैं जनरेशन को बदलने में बिलीव करता हूँ और देश को में जब लोग एक दूसरे से प्यार करें, धर्म ग्रंथ सब जला चुके जिसके अंतर की ज्वाला, पंडित मोमिन पादरियों के फंदे को जो काट चुका मतवाला, आज उसी का स्वागत करती है मेरी मधुशाला, आज उसी का स्वागत करती है मेरी मधुशाला। ओके। तो ओके। आई बिलीव इन दिस फिलोसफी कि हम सब एक हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और मोहब्बत सिखानी है स्कूल में से। मैं लव और ट्रांसफॉर्मेशन, दो चीज़ें मेरी लाइफ की कंटिन्यू है। As a principal, could you tell us about your experience with the students in Kakinada? वंडरफुल एक्सपीरियंस मैडम। ओके। आप इस प्रोफेशन से जुड़े हैं हाँ जी। क्योंकि आप भी लोगों को मोटिवेट करते हैं, हाँ जी, लोगों को बाहर निकालते एक जोन से कि ज़िंदगी के अंदर बच्चे और बड़े हाँ जी। किस तरह से पॉजिटिव होकर अपने लाइफ के जो एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करें। करेक्ट। मुझे इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इसी बात में मिलता है कि मैं प्रतिदिन ये शपथ के साथ आता हूँ कि आज एक बच्चे को ज़रूर बदलूँगा, ओके। और मैं उस दिन उस पर काम करता हूँ, चाहे वो मेरा टीचर हो, चाहे वो मेरा बच्चा हो, चाहे मेरे स्कूल का सब स्टाफ हो, मैं सबको एक पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ बांध के रखता हूँ। और मेरी सारी टीम, मेरा सारा स्कूल, मेरे सारे टीचर्स एक मेरा परिवार है। मेरे जो बच्चे हैं, मैं अपने उन बच्चों को कहता हूँ, जब मैं स्टेज से मॉर्निंग असेंबली से उनको जब एड्रेस करता हूँ तो मैं कहता हूँ, यू आर माई डॉटर्स एंड माई सन। ओके। और वो जो शब्द जब मैं देता हूँ बच्चे को, हाँ जी। तो उसके अंदर वो परिवर्तन आता है, वो थ्रिलिंग आती है। और इस विद्यालय में जब मैं प्रवेश करता हूँ सुबह मॉर्निंग में, तो इसको मैं एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा इसी को मानता हूँ। मैं पिछले लास्ट 6 साल से मैं एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा कि इसको मैंने स्पर्श करके इसके अंदर नहीं घुसता हूँ। ये मेरा एक कंटिन्यू प्रयास है और इसको मुझे देख के मेरे स्कूल के सारे बच्चे ये प्रयास करते हैं। अच्छा। कोई बच्चा शीशा नहीं तोड़ता, कोई बच्चा फैन को नहीं स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं करता लाइट का, किसी तरह की कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं है। ओके। ओके। तो ये मॉरल वैल्यूज़ में डिपेंड करते हैं। आपके तो सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं ना जी। स्कूल में, तो आप सबके साथ कैसे संबंध रख पाते हैं? दुनिया में बहुत बड़े बड़े आइकॉन हुए हैं जो सारे संसार को प्रभावित करते हैं, एक को नहीं। ये मेरा एक फॉर्म बिलीफ सिस्टम है कि जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ तो मैं हर क्लास के अंदर बच्चों की क्लास में जाता हूँ और उस क्लास में जाके मैं बच्चे को चेहरे को देखता हूँ और जो मुझे सबसे उदास चेहरा दिखता है मैं उसको बुलाता हूँ और मैं उससे बात करता हूँ कि बेटा और कैसे हो। जब ये शब्द मैं कहता हूँ ना, बेटा कैसे हो और क्या चल रहा है, तो बच्चा बदल जाता है बच्चा। ओके। और मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ एज प्रिंसिपल, जो मैं कह रहा हूँ कि जब भी मैं किसी बच्चे को टच करता हूँ वो बच्चे की भावना निकल के आती है और मैं उसको शेयर करता हूँ मॉर्निंग असेंबली में विद एस्पिरेशन, पॉजिटिव थॉट के साथ।
एक एक बच्चा मेरे स्कूल का, मेरे को अतिशयोक्ति नहीं है मैम, क्योंकि जो आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है, आप जो बच्चों के बीच में लेके जा रहे हैं मुझे, हाँ जी, खाली ये प्रोग्राम मेरे और आपके बीच का नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं, जो Absolutely. प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। हाँ जी, ये इस प्रोफेशन में अगर आप बच्चे की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं और हर बच्चे को अपना बच्चा मानते हैं, तब आप सक्सेसफुल इंसान हैं। तो बिल्कुल मैडम सही, बिल्कुल ये मेरा सही। मिशन है और मैं इस मिशन में जुड़ा हुआ हूँ कि मैं मुझे बच्चे को बदलना है। और मेरा देश, मैं उस देश का सपना देखता हूँ जो गांधी जी देखते थे, कि जहाँ पे ना कोई जाति हो, ना कोई धर्म हो, Right. आओ मिलके एक साथ चलें, हाँ जी। देश को आगे लेके जाएं और हर बच्चा आपका बच्चा, कोई छूटे नहीं आपसे। अगर टेलिस्मैन जो गांधी जी का है कि आपका कोई भी काम अगर उस सबसे आप जो छूटा हुआ बच्चा है उस तक पहुँचे और उसको बदल सके, तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। Absolutely, Otherwise आप कुछ नहीं हैं। Absolutely, very nice. आपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या किया? मैडम, मोटिवेशन करने के लिए हाँ जी, जो सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे का, कि आपके बच्चे के साथ बॉन्डिंग है। राइट, एक दिन में कोई भी मोटिवेट नहीं होता है। एब्सोल्युटली, जब कोई नया प्रयास आप शुरू करते हैं तो हाँ सबसे जी। पहला प्रयास है कि अगले को स्पेस दें हम। ओके, जब हम बच्चे को या अपने टीचर को स्पेस देते हैं, हाँ जी, क्योंकि टैगोर जी की जो एक फिलोसफी है कि वेयर माइंड वर्क्स विदाउट फियर, राइट, तो विदाउट फियर जब हम कोई काम करते हैं, जब हर किसी को लगता है कि ये मेरा स्कूल मेरा घर है और मेरे टीचर मेरे भगवान है, उस कल्पना में विश्वास करता हूँ। तो जब बच्चे के साथ आप बॉन्डिंग एडजस्ट करते हैं तो बॉन्डिंग के साथ बच्चा आपका फ्रेंड बन जाता है। और फ्रेंडली जब एनवायरनमेंट होता है तो ज़िंदगी बदलती है, क्योंकि फ्रेंड्स ऑलवेज डिस्कस, यस, वो कभी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। तो मैं बच्चे के साथ एक दूसरे का दोस्त हूँ और मैं बच्चे के साथ खेलता भी हूँ, मैं बच्चे के साथ पढ़ता भी हूँ, मैं बच्चे से सीखता भी हूँ। मैं यूजुअली अपने टीचर से कहता हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो। ओके, और ये अपील जब काम करती है ना, हाँ जी। तो बच्चा, वो टीचर सोचता है कि प्रिंसिपल साहब ऐसा कह रहे हैं, तो मोर रेस्पॉन्सिबल, मोर रिलायबल। एब्सोल्युटली, और हमारा काम क्या है कि हमें रिलायबल सिटीजन पैदा करना है। हर व्यक्ति ये सीखे, जैसे आप जो आज काम कर रहे हैं, हाँ जी, ये आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये उन सब लोगों के लिए कर रहे हैं जो इस देश के अंदर बड़ी अपेक्षाओं के साथ पैदा हुए हैं। और उन सबको ये लगेगा कि जब मैडम और सर ऐसा कर सकते हैं तो आगे हम भी तो कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और यही हमारा मिशन है हाँ जी। कि लाइक बिगेट्स लाइक, कंपेटेबल फेलोज रिकॉग्नाइज ईच अदर्स। आपने मुझे पहचाना, हाँ जी, ये मेरा सौभाग्य है, हाँ जी। क्योंकि किसी को पहचानना, एक मीटिंग के बाद आपने पहचाना एब्सोल्युटली, और आपने मेरा प्रोग्राम्स देखा, हाँ जी, मैं उसी में जीतता हूँ। दैट इज़ माई फिलोसफी। ओके, गुड। जी। आपके सुपरविजन और गाइडेंस से बच्चों में क्या बदलाव आया? बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बायो, आई बिलीव इन एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंजाइटी को रिमूव करना, हाँ जी, पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा करना, पॉजिटिव स्टिमुलस देना। जो बच्चा अपने आप को ये समझे कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं कहता हूँ तेरे बस की बात है। बी पॉजिटिव। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति बिना अच्छे गुणों के पैदा नहीं हुआ है। ब्लूम टैक्सोनॉमी कहती है कि हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी स्किल्स होती हैं और उस स्किल को, आपको पर्टिकुलर स्किल को उसको पहचानना है। मैं बच्चे को पहचानता हूँ। जो बच्चा डरता है उसका डर दूर करता हूँ। उस बच्चे को सबसे पहले मॉर्निंग असेंबली में बुलाता हूँ, माइक पे बोली बेटा, और माइक पे जब वो बच्चा बोलता है तो प्रिपेयर करता है अपने आप को। आप किसी को भी कहिए, जैसे आज आप आए तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं, एब्सोल्युटली, तो हर व्यक्ति तैयार करता है। जब वो बच्चा तैयार करता है तो उसका पहला कॉन्फिडेंस उसके अंदर इंक्यूबेट हो जाता है कि यस आई विल डू समथिंग। सेकेंडली, जब मैं बच्चे को पास बैठा के, जैसे आप और हम बैठे हैं, ऐसे मेरी ऑफिस चैम्बर में बच्चे को पास बैठा लेता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, बेटा ये क्वेश्चन अभी याद करना है, 5 मिनट लगेंगी, आप करिए। मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो बच्चा उस पर लगाता है, फिर उसको इंटरेस्ट आ जाता है, क्योंकि आप स्टिमुलस बेस्ड थ्योरी है। आप पॉजिटिव स्टिमुलस दीजिए, रिप्लाई पॉजिटिव आएगा। लाइफ में मैंने जितने भी बच्चों को जाना, क्योंकि हमारा प्रोफेशन क्या कहता है, पहले बच्चे को जानिए, हाँ जी, बच्चे का सोशल एटमॉस्फेयर जानिए, हाँ जी, उसके पेरेंट्स को जानिए। मेरी फ्रीक्वेंट मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर मीटिंग। ओके, मुझे जहाँ भी जिस भी केस में लगता है, मैं अपने टीचर्स को लिस्ट बना के देता हूँ कि मुझे बताइए आपकी क्लास में कौन बच्चा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। वो बच्चे की लिस्ट होती है, पेरेंट्स से बात करता हूँ, आइडेंटिफाई करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, चॉकलेट देता हूँ, एवरीथिंग आई डू, जो एक बाप अपने बेटे के लिए करता है, हाँ जी, हाँ जी, आई डू विद माई टीम ओके, ओके। डेफिनेटली। सो आपको मैं पूछ रही थी कि उनमें
एक तो आप बोल रहे हैं कि उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, सो दैट इज़ योर वे ऑफ वर्किंग कि पहले उनका वो फियर तोड़ें और फिर उनमें वो कॉन्फिडेंस दिलाएं ताकि वो आगे भी कुछ कर पाए। जी मैडम, जो आप काम कर रहे हैं ना, स्ट्रेस को रिमूव करना, हाँ जी, दुनिया में किसी को भी अगर कोई रोकता है ना, वो एक स्ट्रेस रोकता है, एक दुनिया का भय रोकता है उसको कि अगर मैं ये कुछ करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, और उसमें सबसे बड़ा पीयर प्रेशर होता है क्लासरूम के अंदर, और पीयर प्रेशर को तोड़ने के लिए बच्चे को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ता है। हाँ जी, जैसे आपने पिछले साल वर्कशॉप की, हाँ जी, उस वर्कशॉप में आपने जो एड्रेनलिन हार्मोन की बात की, हाँ जी, डोपामाइन की बात की, वो फिजियोलॉजिकल जो सिस्टम की जब हम बात करते हैं हाँ जी, तो उसमें बच्चे को, इंडिविजुअल बच्चे को पहचानना होता है। एज ए ग्रुप में आप नॉर्मल हम इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ, तो उसमें बच्चा सही रह जाता है। लेकिन जब उस बच्चे को इंडिविजुअल ग्रुप बना रखे हैं मैंने बच्चों के ना, 5-5, 10-10 बच्चों के ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस एज पर सब्जेक्ट। ओके, किसी की सब्जेक्ट इंग्लिश कमज़ोर हो सकती है, किसी का मैथ कमज़ोर हो सकता है, किसी का साइंस कमज़ोर हो सकता है, उसके बेस पे फिर मेरे टीचर उनको लेके बैठते हैं। तो फिर वो ग्रुप्स बनाने से क्या फ़ायदा होता है? उससे क्या होता है कि सेम कैलिबर के बच्चे साथ होते हैं, ओके, और सेम कैलिबर के अंदर तो फिर एक वो फियर नहीं होता है। राइट, दे आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज एब्सोल्युटली, कि मुझे ये करके दिखाना हाँ है। जी, हाँ वहाँ पे एक इंटरनल जो कंपटीशन होता है ना, वो एक छोटे ग्रुप का कंपटीशन होता है, एब्सोल्युटली, और वो एक दूसरे से पूछते हैं, डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इतनी सारी बातें हैं कि उस में जब बच्चा को एक पहला क्वेश्चन बच्चा याद कर लेता है ना, वो उसका पहला स्टेप होता है, हाँ जी, और वो एक नया फुटप्रिंट उसके लाइफ में लिख देता है। yes, yes. See, this is exactly what I also say, that do not hesitate to take the first step in life. If you take that one small tiny step, you will be able to reach your goal definitely. जिन बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं होता, उनको आप कैसे जागृत करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने, क्योंकि जिनका ध्यान नहीं है वो ध्यान लगाना, वही हमारा काम है। क्यों? मैं इस प्रोफेशन में जब मेरा सिलेक्शन एज प्रिंसिपल हो रहा था, हाँ जी, जो क्वेश्चन आपने पूछा है हाँ जी, वही क्वेश्चन मेरे बोर्ड ने पूछा था मुझसे कि आपको अगर प्रिंसिपल बनाया जाए तो आप क्या करेंगे। ओके, तो मैंने उनको जवाब ये दिया था कि आप जैसे सीनियर लोग पॉलिसी बनाएंगे और उन पॉलिसी को एज प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट करेंगे ग्राउंड पे, और इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला जो प्रयास होता है वो एनवायरनमेंट, और उसे हम कहते हैं होमली एनवायरनमेंट, पेरेंटल केयर और कॉन्फिडेंस। कोई व्यक्ति आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है, हम इंसान तो जानवरों को भी पढ़ा देते हैं, आदमी की तो बात छोड़िए, ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है कि जिसको आप उसके साथ बॉन्डिंग, इंटरेक्शन, उसका फेथ और उसको सुन लें आप। हर व्यक्ति क्या चाहता है इस दुनिया में, मुझे सुना जाए। हाँ जी, जब आप उसे सुनेंगे तो निश्चित रूप से वो बच्चा बोलेगा, और बोलेगा तो उसका इंटरेस्ट आपके सामने आएगा। फिर उसको सपने दिखाने हैं कि दुनिया में सपनों से लोग कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, और सब सपने माँ बाप के सामने देखता है, खुले आँखों से सपना देखता है कि, और बहुत सारे लेजेंडरी हैं ऐसे जिनको पहले स्टेप के अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, हाँ जी। और गिव अप नहीं करना चाहिए, यही लाइफ की थ्योरी है। आपसे बात करके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई मीन आज मैं आपको और ज़्यादा जान पा रही हूँ। मैं समझ पा रही थी तब भी कि मैंने जितना आपको देखा है, पढ़ा है, वो थोड़ा देखा है, लेकिन उसमें आई कुड see a beauty in you, a beauty which you are sharing with all the other students and teachers and other people in your life also. And आज आपसे बात करके तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। Hats off to you. थैंक यू, Really hats off to you. थैंक यू मैम। ये जो आपने कहा है ये शो करता है कि आप लोगों को कैसे मोटिवेट कर रहे हैं। आपने मुझे भी मोटिवेट किया है, क्योंकि संसार में हर व्यक्ति को मोटिवेशन चाहिए, हाँ जी, और मोटिवेशन के बगैर कोई काम नहीं चलता है। वो एक कहा है, ये क्रेडिट जो मेरे अंदर है, ये एक्चुअली मैं अगर इसको कहूँ तो मेरे माँ बाप और मेरे टीचर्स और आप जैसे लोगों से मिलके जो मिला है ना, उसमें कहा है ये कामयाबियाँ, ये इज्जत, ये नाम तुमसे, खुदा ने जो दिया वो मुकाम तुमसे, मेरे वजूद का जो सारा निज़ाम है वो तुमसे, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे। वाह। आप पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कैसे? पेरेंट्स और प्रिंसिपल और टीचर और बच्चा, सेंटर फोकस बच्चा होता है, और बच्चे को कभी भी ये रियलाइज़ नहीं करवाया जाता कि बच्चा कमज़ोर है। सबसे पहला मेरा जो मंत्र है,
अच्छा, मैं पेरेंट को कभी भी ये नहीं कहता कि आपका बच्चा कमज़ोर है। बहुत अच्छी बात। मेरे टीचर को भी मैं ये कहता हूँ कि कभी आप किसी बच्चे के बारे में ये ना कहिए कि वो बच्चा जानता नहीं है। वेरी नाइस, उससे पेरेंट भी डिमोरलाइज होता है, बच्चा भी डिमोरलाइज होता एब्सोल्युटली, एकदम। है। और जब मैं पेरेंट को कहता हूँ, जब मेरी ऑफिस में बुला के मैं उसके साथ सेल्फी लेता हूँ हाँ जी, और उसको जब मैं चॉकलेट देता हूँ, मैं मेरे पास डायरी होती है डायरी देता हूँ, पेन देता हूँ, वो चेंज करता है उसको। और हर बच्चा चाहता है कि मुझे मेरे पेरेंट के सामने मेरी तारीफ हो। एप्रिसिएशन चेंज द लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। सही, जी, बहुत सही। मैं जब भी देखता हूँ अपने टीचर्स को देखता हूँ, मैं टीचर को हर रोज़ एक टीचर को एक मोटिवेशनल थॉट देता हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप पेरेंट का फ़ोन आया था मेरे पास कि आप तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें हैं ना, वो बच्चे और टीचर दोनों के अंदर चेंज लाती हैं। और टीम जहाँ होती है ना, कोहेसिव अप्रोच होती है, सब साथ मिलके चलो, साथ आगे बढ़ो, हाँ जी, हाँ, तो मुश्किल कुछ भी नहीं इस दुनिया में, वेरी नाइस, कुछ भी मुश्किल नहीं। रियली नाइस। बच्चों को माँ बाप के सहयोग की बहुत ज़रूरत होती है। यही सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है, राइट? यस और मैडम। यही आप कर रहे हैं। आप माँ बाप और बच्चों के बीच में भी एक कनेक्शन ला रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, जरूर जरूर क्योंकि जरूर। जब व्यूवर्स देखेंगे और जानेंगे, जो बच्चा किसी वजह से स्कूल नहीं आता है हाँ, और पेरेंट के पास भी टाइम नहीं है, तो ये जो प्रिंसिपल बैठा आपके सामने, हाँ जी, ये कोई हेजिटेशन नहीं होती, उस बच्चे के घर पहुंच जाता है। ओके, एक अपना टीचर साथ लिया, गाड़ी ली और उस बच्चे को वहाँ से बेडरूम से उठा के ले आता है ओके, और बेटा आ बैठ, मैं तेरे साथ हूँ। ओके, और जब मैं कहता हूँ आ बैठ, मैं तेरे साथ हूँ, यू आर माई मोस्ट लविंग चाइल्ड, और मैं आपको बहुत आगे लेके जाऊँगा। और न जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जो जिस प्यार को चाहते थे कि हमें कोई ऐसा कोई प्यार दे कि मेरी लाइफ बदल जाए, हाँ जी, और इस काके नारा के इतिहास को बदला है मैंने। Very जब मैंने nice, ज्वाइन very किया, जब यहाँ का रिजल्ट 76% था, और आज इसका रिजल्ट, ये उस टाइम बॉटम पे था, आज इसका रिजल्ट 100% और हाई क्वालिटी के साथ टॉपर ऑफ द रीजन है ये। तो टॉपर ऑफ द रीजन वो भी 64 केवीज के अंदर अपने आप में मान्यता रखता है। रियली, तो ये मैडम मैं अपने हार्ट से बता रहा हूँ, मैंने अपने सपने जो मैंने देखे थे ना, वो साकार करके देखे। जब मैं टीचर होता था, मैं सोचता था प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, मैं वैसा ही प्रिंसिपल हूँ जो मेरा सपनों का प्रिंसिपल था, कि मैं हर किसी को एक मौका दूँ, हर उस बच्चे को छूऊं जिसकी ज़िंदगी कहीं कुलमुला रही है, आओ उसको फूल बनाऊं। और वो बच्चे, आज वो बच्चे लिख के भेजते हैं। ओके, मेरा एक बच्चा है 7th क्लास का स्टूडेंट, जो मैं टीचर था, आज वो अमेरिका में सेटल है। और जब वो बच्चा वहाँ से, मैंने वेबिनार करवाई, इंटरनेशनल वेबिनार करवाई, अभी इस दौर में, कोविड-19 के दौर में, ओके, ओके, वो बच्चा रात को 1:30 बजे जब मेरे साथ जुड़ा हुआ था, उसका 1.5 करोड़ का पैकेज है, और जब वो कंपनी के अंदर बहुत अच्छी हाई पोजीशन पे है। और उस बच्चे ने कहा कि सर ने जब मुझे 7th क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने साइंस पढ़ना सीखा था, और उस साइंस ने मेरे जीवन में घर कर गई, और आज मैं आपके सामने हूँ। वो बच्चा वो जब अमेरिका से चल के मेरे प्रदेश हरियाणा में आके मेरे घर से पे मिलता है ना, तो वो मुझे ज़िंदगी में वो देता है जो आदमी सोचता है, वो मुझे मिला है। आज एक मेरा बच्चा IPS है, जो लखनऊ के अंदर कमांड कर रहा है, जो टीचर्स डे पे विश करता है, तो मेरी ज़िंदगी बदलती है कि हाँ, जो बीज आप बोओगे ना वैसे फल लगेंगे आप। और मैं उन सपनों में मैं विश्वास करता हूँ कि आने वाले 20 साल बाद जो लोग मेरा नाम लेंगे ना, हाँ जी, तो वो पहचानेंगे कि हाँ ये कोई बंदा है। मैं अपने बच्चों को भी ये कहता हूँ कि बेटा वो काम करो कि जो जब तुम्हें ये खुद को खुशी मिले, और तुम्हारे पेरेंट को भी ये इस बात का मज़ा आए कि हाँ किसी को जन्म दिया है। जब मैं अपने पापा से डिस्कस करता हूँ तो वो चौड़े हो जाते हैं, कि मैं ये कहता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ जो आपने सिखाया है ना, और ये आपके संस्कार है। एक फौजी का बेटा हूँ, एक जब सामने एक फौजी को देखता हूँ तो मेरा खून बिल्कुल गर्म हो जाता है कि इसके बच्चे को बदलना है, और मुझे वो इंस्टीट्यूशन मिली है जहाँ फौजी का बेटा पढ़ता है। मैं वो फौजी जिसने मुझे पाला है, वो सीमाओं पे, वो पाकिस्तान के युद्ध के अंदर शामिल थे मेरे पापा, अच्छा, और मैं वो सब देखता हूँ कि उस समय वो अगर नहीं होते तो क्या होता। ओके, तो आज मैं उन बच्चों को जब देखता हूँ मेरे सामने ना, तो मैं उस बच्चे को ये कहता हूँ कि बेटा तेरे पापा की जो कमाई है ना, बड़ी मुश्किल की कमाई है। जब मैं कर्नल साहब से डिस्कस करता हूँ, मेरे चेयरमैन से, तो मैं उनको भी यही बोलता हूँ, सर मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ, और आप लोगों की रोटी खाई है मैंने, और मैं पूरा कर्जा चुकाना चाहता हूँ। ओके, मैडम रियली मतलब जो आप पूछ रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या क्या जवाब दूँ इन चीज़ों को।
आई अंडरस्टैंड आपके कितने सालों की मेहनत है, जी। कितने सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसको आधे एक घंटे में कहना, आई मीन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स रियली नाइस। और मैं देख पा रही हूँ कि आप कितना इमोशनल हो रहे हैं बात करके। नहीं, आपने जो मुझे टच कर दिया है ना, वो मेरी झनकार बाहर निकल रही है। मेरे जीवन का जो मैंने जो मेरे ब्लड में जो बहती है ना चीज़, मेरे ब्लड में गंगा बहती है। ठीक है, मैं एक उस फ्लो के साथ ज़िंदगी को जीता हूँ कि मेरे अरमान बहुत बड़े हैं। हमारे ये एडमिरेबल अचीवर्स अवार्ड्स का यही उद्देश्य है, यू नो, टू ऑनर एंड रिस्पेक्ट पीपल लाइक यू। मुझे मतलब बड़ा फक्र है भगवान पे, माँ बाप पे, आप जैसे लोगों पे ना। आप वो हैं, जब मैंने आपको देखा था ना उसके अंदर, हमारे प्रोग्राम के अंदर, हाँ जी, और आपने इतने सुंदर तरीके से अपनी वर्कशॉप में उस बबली यादव को बाहर लेके आए थे आप। यस यस, और वो बच्ची को जब आपने जो टिप्स दी थी ना, हाँ जी, वो बच्ची इतनी मोटिवेटेड थी। नेक्स्ट डे से मैंने उसको, मैथमेटिक्स उसका कमजोर था, हाँ जी, उसी दिन से मैंने उस मोटिवेशन को आपने दिया, उसको कैरी ऑन मैंने 1 महीना लगातार कर दिया। और नाउ सी इज इन क्लास 11th, और बहुत खुशी के साथ वो पढ़ रही है, लाइफ को आगे बढ़ा रही है। एक और भी बच्चे ने, जब जिसको मैं मिली थी, वो भी बोल रहा था कि जो मैंने टेक्निक बबली के साथ किया था, हाँ, वो खुद अपने घर में अपने ऊपर कर रहा था, यू नो। जब आप कहीं भी साइलेंटली कोई काम करते हो ना, हाँ जी, जैसे हमारी इस वीडियो को जितने लोग देखेंगे, हाँ जी, वो देखेंगे, उसके बाद वो उसको प्रैक्टिस करेंगे, और उससे एक मोटिवेशन मिलेगा, लाइफ बदलेगी। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ इस ज़िंदगी में जो रखा है ना, वो कहाँ पे है कि आपके वजूद का निज़ाम क्या है, आप इस धरती पे आए क्यों। और हम सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं आए, ये अपने 2 बच्चों को पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए हमारा मकसद नहीं है। हमें भगवान ने मौका दिया, हम पढ़े लिखे, तो हमारा काम क्या है कि जो वंचित लोग हैं, जो बचे हुए हैं आज भी, आज़ादी के 70 साल बाद भी लोग बचे हुए हैं, हाँ जी, जिनके घर में आज भी रोशनी नहीं हाँ है, जी, पहली जनरेशन पढ़ी लिखी नहीं है, हाँ जी, और जो फर्स्ट जनरेशन का बच्चा आरटी में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लान है, अच्छा, राइट टू एजुकेशन में, वो ओके, बच्चे हम एडमिट RTO, करते हैं। RTE, हाँ, कि जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, और उस बच्चे को जब हम बदलते हैं ना, मेरा मैक्सिमम फोकस उन बच्चों पे होता है। मैं टीचर को कहता हूँ कि जो सबसे चुपचाप बैठा है ना बच्चा, वो नहीं छूटना चाहिए। वो आज हो सकता है कि बहुत अच्छा ओरेटर ना हो, उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी ना हो, लेकिन वो उसके अंदर वो ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन बसता है। आइंस्टीन बहुत लेट आइंस्टीन पैदा हुआ था, 8-10 साल की एजुकेशन के बाद उसको ये एहसास हुआ था कि मेरे में टैलेंट है। तो मैं हर बच्चे में आइंस्टीन देखता हूँ, ओके, मैं उसको तरसता हूँ, परखता हूँ, और उसको कोहिनूर बनाना चाहता हूँ। ओके, और बन रहे हैं मेरे बच्चे। डेफिनेटली, पिछले साल मेरा बच्चा है, मेरे स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा, जिसको मैंने 8th क्लास में साइंटिस्ट का सपना दिखाया था। उस बच्चे ने एक प्रॉब्लम रखी कि सर मेरे पास बजट नहीं है। अच्छा, मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप बिल लेके आओ, जो प्रोजेक्ट में पैसा लगेगा आई विल गिव यू। ओके, मैंने वो पैसा दिया, और वो लास्ट ईयर उस बच्चे का सिलेक्शन नेशनल साइंस कांग्रेस में हुआ। वाओ, उस बच्चे का जब फोन आया कि सर आज मैं इस लेवल पे पहुंच गया हूँ, हाँ हाँ हाँ, तो मुझे और क्या चाहिए। और क्या, जो आप जो बीज लगाते हो और उसके फल लगता है, और फिर वो फल आपके पास वापस पहुंचता है, और वो आपको एक थैंक यू बोल देता है। टीचर को कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया में, हाँ जी, हाँ जी, एक थैंक यू कोई कह देना कि हाँ सर आपने किया है, यस, वो और डबल करने को दैट इज द मेन सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट वन, सेटिस्फेक्शन नहीं है। हाँ जी, और ये इस सेटिस्फेक्शन का सबसे बड़ा लेवल आपके घर में शुरू होता है। अच्छे थॉट, अच्छे विचार, जितने भी पेरेंट इसको देखेंगे, मैं जितने भी पेरेंट मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कभी भी अपने बच्चे के साथ बैठ के आप कोई नेगेटिव फिलोसफी को डिस्कस ना करें। आप किसी भी ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पे कितने भी दुखी हैं, लेकिन अपने बच्चे के साथ पॉजिटिव बात करें। अपने बच्चे को कभी ये ना कहें कि मैं वो व्यक्ति के कारण से मैं पीछे रह गया। अपने आप को पहचानो, कमी कहाँ रह गई अपने आप में ढूंढो, कोई व्यक्ति आपको पीछे नहीं रख सकता। राइट, और अगर वो बात आप डिस्कस करोगे बच्चे के लिए, बच्चे के सामने कहोगे कि आपके टीचर बहुत अच्छे हैं, वो टीचर डबल माइंड से उसको पढ़ाएगा, और वो होता है। तो इसलिए रेस्ट डिपेंड करता है पेरेंट पे कि उसकी जो काउंसलिंग करे ना, वो विश्वास करे कि टीचर जो बना है उसको प्यार से बदल दो, आप टीचर को भी बदल दो, और टीचर भी बदल जाता है। ट्रू ट्रू। जी, मिस्टर नारायण, मेरा जो सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो है इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। और क्या है कि आजकल बच्चे जो हैं बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने टीचर्स पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते। तो
इसमें आप इसके लिए आप क्या करते हैं? ये मैडम जो क्वेश्चन पूछा है आपने, हाँ जी, ये मेरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हाँ जी, और जो बायोलॉजी का जो पर्सन होता है ना, वो साइकोलॉजिस्ट फिलोसफर बेसिकली होता है, अगर वो सब्जेक्ट को समझता है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, हर व्यक्ति एक स्पेस चाहता है, उसकी अपनी एक जोन है, थिंकिंग जोन। लोग उसको पहचानते नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं। और जिस टाइम बच्चे को पहली बार इग्नोर किया जाता है, वो उसके ब्रेन पे इम्पैक्ट डालता है। राइट, आपको बताया कि पहला जो नेगेटिव रिमार्क होता है ना, हाँ जी, वही बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है। बिल्कुल और सही। उसको एज टीचर मैं ग्रूम हुआ हूँ इसी फिलोसफी के अंदर, कि मैंने मेरी जो कैरियर शुरू किया था एज साइंस टीचर किया था। हाँ जी, 6th क्लास का जब बच्चा मैं पढ़ाता था, तो उस बच्चे में मैं आइडेंटिफाई करता था कि इस बच्चे को इंस्पिएंट जोन में क्यों है, ये हाउ कौन से जोन में? इंस्पिएंट जोन में साइलेंट क्यों है। ओके, और इस साइलेंट जोन से उस बच्चे को निकालने के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि टीचर का उस बच्चे को के साथ बॉन्डिंग अटैचमेंट पैदा करना। और जैसे ही आपकी अटैचमेंट पैदा होगी, वो बच्चा आपके साथ बात करेगा, और बात करेगा तो बात में से राज निकलेगा, और राज पे आपको जब काम करना है उसके, तो उसके मेंटल लेवल जो है ना, टीचर का और बच्चे का बराबर का होना चाहिए। और मेंटल लेवल पे जब आप काम करते हैं ना, जब आप किसी के लिए कंपेटेबल बन जाते हैं, और लविंग जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें कंपेटेबिलिटी जोन होती है, और उसके अंदर बच्चा आपका एक दोस्त होता है, वो एक आपके लिए सपना देख के लाता है। जब मैं आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ, 6th क्लास का एक बच्चा जब मैं पढ़ाता था फिरोजपुर के अंदर कैंट में, मेरा प्रिंसिपल में सिलेक्शन हुआ, उस बच्चे ने मुझे एक लेटर लिख के दिया। अच्छा, आज तक वो लेटर मेरे पास संभाल के रखा है। अच्छा, सर आपको बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, इसको बड़ा परख के आपको करना है सर। ओके, तो जब एक बच्चा 6th क्लास का बच्चा जब आपको आगाह कर सकता है, और वो मैं पढ़ता हूँ, जब मैं प्रिंसिपल काम करता हूँ, मेरे पे रेस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। और वो बच्चे का लेटर आज भी संभाल के रखा है, मैं आज आपको दिखाऊंगा, आप उसकी कैप्चरिंग करिए उसको। ओके, तो ये जीवन के अंदर कौन कहता है बच्चे के अंदर, अगर फादर चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। अगर लाइफ को देखेंगे आप, बच्चे को आपको पहचानना है, टैप करना उसको जहाँ उसके अंदर जरूरत है ना। और मैंने आज तक ऐसा बच्चा पाया ही नहीं है कोई कि जिसको मैंने छुआ हो और वो एक्सप्रेस ना किया हो। बायोलॉजी कहती है कि स्टिमुलेशन दीजिए, और आप उसके बाद रेस्पॉन्स तो आए ही आएगा 100%। ऐसा कोई आपने मुझे दिया ना, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ जी। यही तो बोलने की कला ही तो डेवलप करनी है। मैं जब मैं कॉलेज में थी, जी, उसके बाद मैंने थोड़े दिन एक स्कूल में मैंने टीचर की हैसियत से काम किया था। जी, तब मैंने भी रियलाइज़ किया कि अगर किसी बच्चे से हम कुछ चाहते हैं, तो पहले हमें उस बच्चे के उसके लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसका हाथ वहाँ से पकड़ के उसको ऊपर उठाना होगा। आपने यूजुअली मैं डिस्कस करता हूँ एग्जांपल, फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, जर्नी ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट होगी ना। पहली जो स्टेप है उसको क्रॉस करेगा, फिर सेकंड को करेगा, फिर थर्ड को करेगा। लोग क्यों सपना देखते हैं कि 20 स्टेप एक साथ चढ़ेगा? मैं कहता हूँ एक स्टेप, हाँ जी, सेकंड स्टेप, वन स्टेप एट अ टाइम। और आप अपने स्टेप से आगे चलना है। मेरा अरोड़ा मैडम से कोई कंपटीशन नहीं है, मेरा मेरे से कंपटीशन है। अगर मैं आज 50 का हूँ तो कल मुझे 55 का होना है, फिर अगले दिन मुझे और प्रोग्रेस करनी है। एवरीडे जो एडिटिंग इफेक्ट है ना, कॉमुलेटिव इफेक्ट और एडिटिंग इफेक्ट आपको लाइफ में डालना है, ओके, और यू विल इम्प्रूव। यस। I myself am learning so much from you today. थैंक यू। आपके 19-20 2019-20 के बोर्ड्स में स्टूडेंट्स ने कैसे किया? What were the results like? मैडम जो आपने वीडियो क्लिप डाल रखी है ना आपके ऊपर, उस पे वेबसाइट पे, हाँ जी, मैंने उसमें क्लेम किया था आपके सामने। हाँ जी, मैंने कहा था कि मेरे 2 बच्चे, हाँ जी, मैं आपको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बच्चे टॉपर होंगे। हाँ जी। वो दोनों बच्चे टॉपर हैं। ओके, तो आप ये मानिए कि मोटिवेशन कितना काम करती है। आपके वर्कशॉप को मैंने मोटिवेशन में चेंज कर दिया टोटल, और उसी दिन मैंने मोटिवेशन दे दिया। और वो बच्चे दोनों टॉपर हैं। मेरा स्कूल का ओवरऑल रिजल्ट मेरे रीजन में टॉप है, और एक बच्चे ने क्लास 10th और 12th में हमारी अच्छी पोजीशन है, क्वालिटी रिजल्ट है। तो आप क्रेडिट तो आपको भी जाता है ना। आप आए और आप आए, हमारे जितने अधिकारी आए, मेरे पास जो भी आता है मैं उसको एक मोटिवेशनल चैनल के रूप में यूज करता हूँ। मैं मेरे किसी भी सुपीरियर ऑफिसर को बिना मोटिवेट किए भेजता नहीं यहाँ से। वो बच्चों को मोटिवेट करेगा,
वो और उनके लिए मैं जो भी मुझे अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना मैं करूँगा। ओके। और मैं उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके रखता हूँ कि अब की बार इन बच्चों को मिलाना है, अब की बार इन बच्चों को मिलाना है। मेरे अगर चेयरमैन साहब आते हैं, कर्नल साहब मिलके जाएंगे और वो वर्क करता है। मतलब मोटिवेशन ये नहीं कि आज कर दी 6 महीना चुप हो गए। हाँ जी। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, आज करो, 10 दिन बाद करो, फिर 20 दिन बाद करो। मिस्टर नारायण, चलिए देखते हैं कि आपके टॉपर्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जी। ओके। सुप्रभात, मेरा नाम आयुष गुप्ता है। मैंने AISSC परीक्षा में 95.2% के साथ केंद्र विद्यालय कांकीनाड़ा की तरफ से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी इस सफलता का श्रेय मैं अपने प्राचार्य महोदय एवं अपने शिक्षकों को देना चाहता हूँ। प्राचार्य महोदय की जो भूमिका थी वो मेरी इस सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। प्राचार्य महोदय ने हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी हमारा ढाढ़स बांधे रखा। हमारे साथ वो हमेशा आगे बढ़ते रहे और हमें भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्राचार्य महोदय ने जब हम कोई गलती करते तो हमें डांट दिया करते, लेकिन उनकी डांट में एक प्यार छुपा था, जिसके कारण ही हम इतने आगे बढ़ सके। उन्होंने हमें अब पराये की तरह नहीं बल्कि अपने बेटे बेटी की तरह संभाला और जिसके कारण ही हम इस मुकाम तक पहुंच पाए। उसी के साथ साथ हमारे शिक्षकों ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कारण हम इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। परीक्षा से पहले निशी अरोड़ा मैम ने भी के वक्तव्य ने भी हमारा बहुत ही हमें प्रोत्साहित किया और उसी के साथ साथ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दी। इन दोनों महानुभवों का मैं हमेशा से कृतज्ञ रहूँगा। अंत में मैं अपने प्राचार्य महोदय का शत नमन करता हूँ एवं अपने शिक्षकों का भी पूर्ण रूप से आभार व्यक्त करते हुए अपने इस वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Hi, Namaste. My name is Suchanda Banerjee and I have secured second position with 92.2% in Kendra Vidyalaya Kankinada in AISSC exam from this session 2019-20. I would like to attribute my success to my honorable principal sir and to all my teachers who had left no stone unturned to help me throughout the session, through all the ups and downs. My principal sir has always motivated me to stay strong and stay focused, and he has always motivated me to dream big. It was never before meeting him or his advices that I've ever believed in myself, that I've ever believed to dream big. But it was only after his advices and his inspiration I have started to believe in myself and I have started to dream big. I would also love to thank Nishi Arora ma'am, who took out her precious time just before the approach of our board exams to help us to relieve the stress and stay motivated, stay focused, and have self-confidence in ourselves. Therefore, I would like to thank all my teachers, Principal Sir and Nishi Arora ma'am, for helping me throughout the year so that I can achieve and secure this position. Thank you. Good morning, respected Principal Sir, Nishi Arora ma'am and my all the teachers. I want to express the core feeling of my heart in the contribution of my teachers in my achievement. सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिंसिपल सर ने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। एग्ज़ाम के टाइम में जब बच्चे बहुत नर्वस हो जाते उस समय उन्होंने हमारा हाथ थामा। हम तो एक छोटे से पौधे जैसे थे, उन्हें पानी देकर उन्होंने पेड़ का रूप दिया, गीली मिट्टी को मूर्ति का रूप दिया। और उस वक्त जब हमारी तैयारी चल रही थी तो उस समय हमने तैयारी तो खूब कर ली थी, मगर फिर भी कहीं न कहीं हमें अच्छी एंडिंग चाहिए थी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारा प्रेशर होता है, फैमिली प्रेशर और भी बहुत सारा प्रेशर। लेकिन जिस दिन हमारा फेयरवेल था उस दिन सर ने निशी अरोरा मैम को बुलाया, और चाहे कोई बल्लेबाज सेंचुरी क्यों ना मार ले, लेकिन जब तक विनिंग शॉट नहीं मारता उसकी इम्प्रेशन कम हो जाती है। और उसी दिन
फेयरवेल के दिन मैम ने आई और ये बता दिया कि आखिर क्या करें जिससे जो हमारे अंदर डर है उसे जीता जा सके। तो मैम आई और हम लोगों को 4 टिप बताई। वो टिप मैंने फॉलो किया और मैंने ये देखा एग्ज़ाम के पहले जैसे कि मेरा डर तो हवा ही हो गया, और उसके कारण जो मुझे आता था मैं वो अच्छे से लिख पाया। नहीं तो हर बार घबराहट के चलते जो मुझे आता है ना वो भी मैं छोड़ के आ जाता हूँ। और उसके बाद अब आखिर ये सवाल उठता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया जिससे मैं टॉपर बना। तो ये मेन टिप देखिए, सबसे पहले अगर आपके सपने बड़े हैं ना तो आपको कोई तूफान नहीं रोक सकता। ज़माने से आप नहीं हो, आपको ज़माने के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, सपने बड़े रखने। और आखिर मैंने ऐसा क्या किया, तो रात में सोने से पहले मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ याद आती थी। पहला अपने टीचर का चेहरा, उनकी मुझसे उम्मीदें, और दूसरा बोर्ड पर अपना नाम। किसी भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जिस दिन बोर्ड पे मैंने अपना नाम ना देखा हो। वो सपने मेरे अंदर इतना ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर पैदा कर दिए कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाता था। रात में मैं सोने का कोशिश करता था लेकिन मुझे नींद नहीं आते थे, और इसी कारण मैंने अपना बेस्ट दिया। उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने पूरा रात लगा दिया, और 1 महीना नहीं सो के क्या फ़ायदा अगर बोर्ड पे मेरा नाम आ गया तो। और ये इसकी खुशी मेरे लिए बड़ा है। वो जो बीता उसका मुझे कुछ लेना नहीं, लेकिन अभी जो खुशी मेरे पास है यही मेरे लिए सब कुछ है। और लास्ट में मैं अपने अचीवमेंट के पीछे पूरा इसको डेडिकेट करता हूँ अपने प्रिंसिपल सर, टीचर्स और निशी अरोरा मैम को। अगर वो नहीं होते तो मैं भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता। धन्यवाद एवं शुभ दिन। सुप्रभात, मेरा नाम अंकित साव है। मैंने कक्षा 10वीं केंद्र विद्यालय कांकीनाड़ा से 93.8% के साथ पास किया है। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे मेरे से ज़्यादा मेरे टीचर्स, मेरे प्रिंसिपल और मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे टीचर्स का है और मेरे प्रिंसिपल सर का है। प्रिंसिपल सर हमेशा हमारे साथ थे। उन्होंने हमें कभी भी डीमोटिवेट होने नहीं दिया, हमेशा हमें मोटिवेट रखते थे। हम जब भी एग्ज़ाम दे के निकलते थे सबसे पहले प्रिंसिपल सर आते थे, कैसा गया एग्ज़ाम, तो कहाँ तुम्हारा लैग कर रहा है, कहाँ तुम पीछे हो रहे हो, उसको कैसे सुधार सकते हो, ये सारी चीज़ें प्रिंसिपल सर ने हमें बताया। टीचर्स ने हमें हमेशा अपना बेस्ट दिया, और जब भी हमें कोई भी डाउट होता था हम बेझिझक उनसे पूछ सकते थे, कभी उन्होंने मना नहीं किया हमें। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ मेरे मैथ सर का भी था। वो जब आए थे तो मेरे अंदर मैथ में पोटेंशियल था, बट ए ग्रेड नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले मेरे इस पोटेंशियल को भापा, और उन्होंने साल भर मेरे साथ मेहनत किया। मेरे ही नहीं, सभी बच्चों के साथ किया। जो बच्चे फेल होते थे उनके भी मैथ में बहुत बढ़िया नंबर आए। उन्होंने बहुत मेहनत किया। और मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। मेरी मम्मी शुरुआत से एक टीचर है, वो वर्किंग वूमेन है, तो उन्होंने पेंसिल पकड़ने से लेकर 10th क्लास तक हमेशा मुझे उन्होंने ही पढ़ाया, और इन्हीं के कारण मैं इतना कामयाब हो पाया। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं सुबह पढ़ता हूँ, कोई बोलता है मैं रात को पढ़ता हूँ। मेरे हिसाब से पढ़ने का कोई टाइम नहीं होता। जब आप फील करो कि आप पढ़ सकते हो आप पढ़ लो, चाहे वो 1 घंटा हो 2 घंटा। अगर आप 20 मिनट के लिए बैठते हो डेट्स इनफ आपको, लेकिन फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। और जब हमारा तैयारी पूरा हो गया था तो हमें एग्ज़ाम प्रेशर बहुत ज़्यादा था कि बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोग कैसे क्या करेंगे, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कैसे अपने प्रेशर को मैनेज करें। तो उस समय प्रिंसिपल सर ने हमारे फेयरवेल के दिन निशी अरोरा मैम को बुलाया था। उन्होंने हमें जिस तरीके से मोटिवेट किया, हमारा एग्ज़ाम प्रेशर एकदम दूर हो गया था, और हमने फ्री माइंड के साथ एग्ज़ाम दिया। इसीलिए शायद ये भी एक कारण है कि हम लोग इतना ज़्यादा बढ़िया कर पाए बोर्ड एग्ज़ाम में। तो निशी मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया इसके। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे कामयाबी के पीछे जितने भी लोगों का हाथ है सबको मेरा सादर प्रणाम है, और बहुत बहुत धन्यवाद सबका। धन्यवाद। आपने वीडियोस देखे जी। कि बच्चे आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। मैडम, ये जो बच्चे हैं ना, हाँ जी। ये मेरा जुनून है। और जब जुनून के से आप काम करते हैं ना तो बच्चा वही बोलेगा जो आप चाहते हैं। ओके। क्योंकि बच्चे के साथ मैंने काम कर रखा है। हाँ जी। और ये जो बच्चे बोलते हैं ये दिल से बोलते हैं। मेरा ये 4 बच्चे नहीं, मेरे सारे बच्चों से आप मिलोगे ना तो मुझे बड़े मैं स्वाभिमान से कहता हूँ इस बात को। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि हमारी ज़िंदगी को बदला नहीं। ओके। और वो हमने किया है उन पे काम। ये जो एक बच्चा है, जब ये परेशान होते थे, जब ये डिप्रेशन आता था, एक दौर आता था, कंपटीशन को क्रॉस करना आसान नहीं है। लेकिन जब आप उसको एक पर्सनल काउंसलिंग देते थे, उसको एक सपना दिखाना होता है, यस बेटा आप 95 पे पहुंच गए, 96 कर सकते हो, आपको थोड़ा सी तरह चेंज करना है, और यू आर द हीरो।
आप हमारे लिए वो लॉरेल्स लेके आएंगे, और दिस विद्यालय इज द इंडिया फॉर यू, Okay. एंड आवर फ्लैग्स मस्ट बी हाई. Good, So good. that acts. Toppers, congratulations on the outstanding results that you have got in your class 10 and 12. Remain motivated always and never let anything stop you from moving ahead. Always remember to take that one small step ahead to achieve your goals. I am pleased to know that my workshop also helped you a little bit towards the achievement of your goals. लेकिन मेरे को उससे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आप अपना पूरा सक्सेस का श्रेय खुद नहीं ले रहे, अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को भी देते हो. दैट इज़ एक्चुअली व्हाट आर द वैल्यूज़ विच मिस्टर नारायण इज़ कल्टिवेटिंग इन यू. So after joining Kendriya Vidyalaya, did you make any changes? Yes, ma'am. As a new incumbent on the new post, this is my first joining as principal in this Kendriya Vidyalaya. मेरे अपने सपने थे, उनको मैं साकार करना चाहता. अच्छा. तो मैंने क्या किया? मैंने किया कि सबसे पहला प्रयास होता है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट. Sorry? कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कि ऐसा एनवायरनमेंट दो हाँ जी. जहाँ पे बच्चा और टीचर फ्री टू डिस्कस, एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें, और जब आप समझ लेते हैं तो क्रिएटिविटी होती है. तो सबसे पहला काम हमारा था टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एनवायरनमेंट, कि हर व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल हो. रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए क्या होता है कि टू विन द फेथ ऑफ द अदर्स. ओके. तो उसके लिए एक टीम स्पिरिट के साथ एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का होता है अथॉरिटेटिव, कि आप पोस्ट पे हैं तो बाई लाज काम हो. यस यस. ठीक है. लेकिन मेरी जो अप्रोच है वो सिनर्जिकल अप्रोच, ओके. कोहेसिव अप्रोच, कोहेरेंट स्टेप्स है मेरे, कि आओ मिलके कुछ काम करें. 2 कदम तुम चलो, 2 कदम मैं चलूं, तो क्यों ना एक कारवा बनाए हम. ये मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य है. तो मैं हमेशा अपने सबऑर्डिनेट को एक पूरा स्पेस देता हूँ कि यू विल एक्सप्रेस, जो आपकी क्रिएटिविटी वो बाहर आए. फिर मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं पब्लिक अप्रिशिएशन में बिलीव करता हूँ. मैं कभी बंद कमरे में अप्रिशिएट नहीं करता किसी अच्छा. को, ओपन पब्लिक में लोगों के बीच में अप्रिशिएट करता हूँ. और जो मुझे मेरे पास होता है, डायरी हो, पेन हो, मैं टीचर को सम्मानित करता हूँ. अच्छा. और बच्चों के बीच में करता हूँ. तो उसके अंदर एक जो इनकलकेशन ऑफ थॉट होता है ना, वो ऐसा पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनता है कि हर आदमी शो करता है अपने आप को. और एक प्रिंसिपल का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो फीलिंग दे सबको, कि बच्चा भी फील करे, टीचर भी फील करे. तो नेचुरली जब फील करेंगे तो बॉन्डिंग डेवलप होगी, और बॉन्डिंग डेवलप होगी तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी. और रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी तो बीच में आपका जो काम है एज प्रिंसिपल, उस काम को आपको कोऑर्डिनेट करना है. और मेरी कोऑर्डिनेशन में सबसे बड़ी एबिलिटी है कि मैं जब बॉन्डिंग हो गई तो मैं रेस्पॉन्सिबल होने को बनाता हूँ. ओके. यस. तो काम आगे जाता है, और निश्चित रूप से जब हम सब मिले हुए होंगे उस काम में तो बनेगा, कोई रोक नहीं सकता. तो जब आप ये बदलाव लाए थे तब कोई चैलेंजेस फेस करने पड़े थे आपको? ये मैडम आपने जो पूछा ये क्वेश्चन, ये कोई भी व्यक्ति आज तक दुनिया में सफल ऐसे नहीं हुआ है. हाँ जी. सफलता के लिए पहला स्टेप जो होता है ना, उसे कहते हैं हम फेल्योर. ओके. जिसे कहते हैं फेल. और फेल का मतलब फेल नहीं होता आदमी, फर्स्ट अटेम्प्ट टू लर्निंग. यस. कि लाइफ के अंदर अगर आपको आगे जाना है तो आपको उस बात को देखना होगा. जब मैं काकीनाडा में आया तो ये इस स्कूल की जो पोजीशन थी एकेडमिकली बहुत अच्छी नहीं थी. अच्छा. स्टाफ का भी शॉर्ट था, रेगुलर स्टाफ भी नहीं था. और उस टाइम मैंने अपने आप को एक रिकॉग्नाइज किया कि जब मैंने बॉटम से शुरू किया था, और आज मेरा स्कूल टॉप पे है रीजन में. और इसमें सारा क्रेडिट मैं और सभी टीचर्स, पेरेंट्स, एज ए टीम हमने काम किया. और टीम में सब लोगों ने महसूस किया कि मेरा रोल इम्पोर्टेंट रोल है. आप, मैं पूछ रही थी चैलेंजेस आपने तो उसमें चैलेंज मैं बता रहा हूँ कि जो चैलेंज सबसे पहला चैलेंज था कि वी आर एट द बॉटम. हमारे जो रिजल्ट्स थे सबसे नीचे थे, नीचे लेवल पे थे, निचले पायदान पे हम खड़े थे. और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हमारी प्रिंसिपल्स की हुई थी, उसमें मैंने अपने आप को एक फील किया था कि मैं कहाँ हूँ, और मुझे लगा कि मैं सबसे पीछे बैठा हूँ. और उस कॉन्फ्रेंस से मुझे जो मिला, मेरे हायर अथॉरिटीज ने भी यहाँ पे राउंड लिया, दिल्ली से लोग आए कि कारण क्या है कि काकीनाडा पीछे क्यों है. और जो मेरे दी देन एडिशनल कमिश्नर थे, उन्होंने मुझे कहा कि मिस्टर नारायण, यू आर डूइंग गुड जॉब,
ओके उनके इस एक शब्द ने मोटिवेशन पैदा कर दी मेरे अंदर। ओके और जब यहाँ पे स्टाफ मीटिंग हो रही थी इसी लाइब्रेरी में, तो उन्होंने कहा यस आपके पास फर्टाइल लैंड है, यू कैन डू द वंडर्स। ओके और वो एक पहला दिन था और हमने कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। हर साल स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चले गए। और इसमें सबसे बड़े चैलेंज पेरेंट के साथ आपका कोऑर्डिनेशन, टीचर के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन। बच्चा आपको इस बात में ले कि जो मेरा प्रिंसिपल जो कह रहा है उसमें दम है, उस बात को मेरी लाइफ के अंदर मुझे डालना है। तो उन सब लोगों ने किया मिलके, और वो जो चेंज किया ना उसे कहते हैं सिनर्जी, पॉजिटिव अप्रोच। राइट। जी। टीचर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया ये चेंजेस जो आप yes. बदलाव लाए? टीचर्स का बड़ा देखो, टीचर्स और प्रिंसिपल क्वालिफाइड लोग होते हैं, और क्वालिफाइड लोगों के अंदर एक परसिस्टिंग अपना एक टेम्परामेंट होता है कि आई एम डूइंग द राइट जॉब। हर व्यक्ति इसी टास्क में चलता है कि मैं जो कर रहा हूँ ये मैं सही कर रहा हूँ। लेकिन जब अगले व्यक्ति को जब आप ये रियलाइज करवाते हो कि यार ये भी एक सेकंड थॉट है, मेरी जो बेसिक फिलोसफी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग है। मैं भी कभी भी कन्वर्जेंट थिंकर नहीं रहा हूँ कि जो मैं कहता हूँ दैट इज फाइनल। मैं कहता हूँ आप कहते हो वो भी एक अच्छा थॉट है, राइट। और उस थॉट की वैल्यू होनी चाहिए। जब मैं अपने टीचर को कहता हूँ, अब मैं पुस्तकालय में बैठा हूँ और पुस्तकालय की बात ना करूँ तो लगेगा, मेरे जो लाइब्रेरियन है उन्होंने ज्वाइन किया 2017 में। ओके। तो वो बेसिकली कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो मैंने उनको जाना पहचाना, मेरी यहाँ मैथ की पोस्ट खाली थी। मैंने सर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दी कि मैथ के जो बच्चे हैं ना उन स्लो लर्नर बच्चों को पढ़ाना है। अच्छा। एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क, एक लाइब्रेरियन से मैथ पढ़वाना ओके। और घर पे पढ़वाना। अच्छा। मतलब कि हमने कोचिंग दी उन बच्चों को, सुबह 4 बजे उठा के भी। अच्छा। उन बच्चों को सुबह 5 बजे भी स्कूल में बुला लिया, 4 बजे भी बुला लिया, और बच्चे भी आ गए। अच्छा। रात को देर रात तक हमने कोचिंग दी। और वो मेरे सामने बैठे हैं। भाई एक्चुअल वर्क है, वो वर्क हमने किया और वो रेस्पॉन्स आया। ओके। तो ये आपका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड करता है आपका एज एडमिनिस्ट्रेटर। इफ यू कैन मोबिलाइज द रिसोर्सेज यू कैन डू द वंडर्स। And how were the teachers? They took the changes well? वेरी पॉजिटिव, Very positively. इनिशियली हर व्यक्ति के अंदर एक इनर्शिया होता है, परसिस्टेंट थॉट होते हैं, और उनको ब्रेक करने के लिए कहते हैं ना सीलिंग ऑफ थॉट्स को ब्रेक करना, वो उसका काम है आपका स्टिमुलस। वो मैंने किया है। और उन थॉट्स को बदल दो, फिर उसके बाद तो फ्लो है, और हर कोई फ्लो में जाना चाहता है लाइफ को। चलिए देखते हैं आपके टीचर्स आपके साथ कैसे जुड़े हुए हैं। जी। ओके। जी। Hello everyone, my name is Sharmishta Mishra and I have been working as PGT English at KV Kakinada since 2018 under the able guidance and leadership of our principal Shri Satyanarayan. Our principal has a dynamic personality and he has the capability to gel well with the students. He empathizes with them and definitely understands their problems and tries to resolve it at his best. The students of KV Kakinada have benefited greatly from his constant guidance and assistance, and the result is right in front of you. We the teachers of KV Kakinada have also been constantly motivated and inspired by our principal. We have learnt a lot from his empathetic behavior, and this has helped us a lot to handle the students quite well. The result of KV Kakinada has been incredible. For the past 3 years, we have been at the top of the region since 2019, and the higher officials of KVS RO Kolkata are also to be applauded for that. I would like to mention the the contribution of our Deputy Commissioner, Madam PBS Usha, our dynamic assistant commissioners, as well as our generous chairman, Shri Rohit Sagar. Our principal, sir, has this unique ability of involving all the stakeholders as well as the community in the process of teaching and learning, and for this very reason he organized a mental well-being workshop the previous year, which was conducted by Madam Nishi Arora, and she interacted so well with the students. She infused so much of confidence in them that they were able to tackle all their exam phobia brilliantly.
And our principal sir has added to that, he has created such a joyful learning environment for the students that our children don't fear exams anymore, and they have been at the top of the region by far, and we wish that they continue to do so. So thank you so much for giving me this opportunity to present my views. Thank you so much. Hello everyone, I am Anjali Rai. I got recruited as a primary teacher in 2019 in Kendra Vidyalaya, Kakinada. Under the able leadership and guidance of our Honorable Principal, Mr. Satyanarayan, we have been working with incessant efforts. If I have to speak about my journey as a teacher in this school, I would like to emphasize that our Prime Minister has groomed our journey not just as a teacher, but as a facilitator for young tiny tots of primary classes. Since our principal has also risen to the position from the post of a teacher, he understands the nitty-gritties of teaching profession. He understands and embraces the children from different backgrounds. Our children are always enthusiastic enough to communicate with our principal sir. The most important aspect which I would like to highlight here is that the tiny tots of primary classes have learned to communicate in English so well that this has been commended by the Deputy Commissioner of the Kolkata region. This has been a mammoth task in the recent years of Kendra Vidyalaya, Kakinada. During the pandemic era of COVID-19, these children were able to handle their mobile phones and technology so well that it impressed the entire school. We were highly impressed by how our principal sir has motivated and counseled us, not only the children but also the teachers. He has always emphasized to embrace the children coming from different backgrounds and how to handle them with patience and perseverance. Today, the ambience of the school has changed a lot due to the presence of Madam Nishi Arora. The helm of affairs of the workshop is being held by Madam Nishi Arora, and we are proud to mention here that our children are infused with lots of enthusiasm to perform well in the exams again. Like last year, our students of secondary and higher classes will perform and bring great results to our school. I would like to conclude here with a simple quotation that leadership is a journey. It is not a destination. It is the efforts which we put in every day that matters a lot. I am blessed to be teaching in an institution as dynamic and worthy as Kendra Vidyalaya. Thank you. Myself, S.R. Misra, PGT History of Kendra Vidyalaya, Kakinada. I feel proud to be the part of this Vidyalaya. This Vidyalaya is growing day by day under the able guidance of our Principal Sir, Sri Satyanarayan. He is a very dynamic, energetic and innovative principal. He is a very good academician as well as administrator. He is a very good motivator. He is a very good coordinator as well as a very good personality. Under his able guidance, the school is growing day by day. He coordinates whatever the things available in his surroundings. Whatever the resources he has, he tries to utilize them in the best way to give the better result and to motivate teachers as well as students for better performance. Last year, he had arranged one workshop on the motivation for the exam warriors to bring them out of their examination fear. Madam Nishi Arora was the person who organized this workshop. During this workshop, Madam presented the things in a very motivative way. Madam is a very good motivator, counselor, educationist, a psychologist and psychiatrist, we can say. He has the ability to bring the students out of their fear. Madam did that very well last year. Madam used the demonstrative as well as the lecture methods to bring out of fear to the students of this Vidyalaya. That resulted in a very good result.
The last year, both 10 and 12th students did 100% quality result in this Vidyalaya. 12th stood first in humanities group in this region. That is the great contribution of ma'am, I think so. I think ma'am this year also motivate our students so that they can bring the Lawrence to this institution and to help in keeping the flag of this Kendriya Vidyalaya Kakinada high. Thank you very much. नमो नमः। मैं बुधेश कुमार मिश्र टीजीटी संस्कृत 2017 अक्टूबर में मैं स्थानांतरित होकर केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा में आया और तब से मैं केंद्रीय विद्यालय के काकीनाडा के प्राचार्य श्री सत्यनारायण जी के अधीनस्थ कार्य कर रहा हूँ। मैं 27 वर्ष से केंद्रीय विद्यालय की सेवा करता आ रहा हूँ, लेकिन पिछले 3.5 सालों में मैंने इनसे जो सीखा वो मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है। इस ऑनलाइन क्लास में मुझे हमेशा प्राचार्य महोदय उत्साहित करते रहे और ये उत्साह निरंतर उनसे मिलता रहे, मैं यही कामना करता हूँ। एक बात मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि मैं तो 10th 12th में नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन 10th 12th के बच्चों के साथ मेरा जुड़ाव रहता है। मैं उन बच्चों के साथ रहता हूँ। गत वर्ष हमारे विद्यालय में श्रीमती निशी अरोरा मैडम के नेतृत्व में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मैडम, आपने उस कार्यशाला में जो हमारे बच्चे हतोत्साहित थे, परीक्षा के भय से डरे हुए थे, उन बच्चों को इतना उत्साहित किया कि उन्होंने केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा का रिजल्ट 100% तो किया, साथ ही उच्च रिजल्ट किया और केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा को कोलकाता संभाग में एक सम्मान दिलाया। ये मैडम आपकी प्रेरणा थी जिससे इन बच्चों का परिणाम बहुत अच्छा हुआ। कोलकाता संभाग के हमारे उपायुक्त महोदया निरंतर कोलकाता संभाग के परिणाम को उच्च करने के लिए तत्पर रहती हैं। ये केंद्रीय विद्यालय काकीनाडा हमारे प्राचार्य महोदय के आने से उत्तरोत्तर परिणाम के उच्चस्थ शिखर को पाने की प्रयास करता है और उसमें सफल होता है। मैं ऐसे प्राचार्य को कोटि कोटि नमन करता हूं और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। आपने टीचर्स की बातें सुनी जी, आपको कैसा लग रहा है? जब आपके अपनी इज्जत करते हैं और वो अपने एक्सप्रेशन में शो करते हैं, हाँ जी, तो वो कहते हैं ना, दिल गार्डन गार्डन होता है। जिंदगी के अंदर किसी को जीतना है तो एक लॉन्ग प्रोसेस के अंदर अगर आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप उनके साथ जुड़े हुए हैं और जब उनकी बारी आती है बोलने की और वो पॉजिटिव रिमार्क्स देते हैं तो लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ काम के लिए आया हूँ और मैं उसको कर पा रहा हूँ। और जो भी मेरे टीचर ने बोला है, ये टीचर वाकई ही तारीफ़ के काबिल हैं। इन्होंने मेरी हर बात को पॉजिटिव लिया है और अपने आप को तैयार किया है कि मुझे आज मेरा रिमार्क्स में देना है तो क्या देना है। तो लाइफ के अंदर ये चीज़ें ही एक्चुअली आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाती हैं। मोटिवेशन। Yes, for the teachers to speak so highly of you speaks a lot actually. क्या होता है ना कि टीचर्स somewhere somehow they feel they know best, उनको यही लगता है और वो किसी और का आदेश नहीं लेना चाहते, you know, लेकिन आप आदेश देते नहीं हो, आप आदेश देते नहीं हो, आप उनको साथ लेकर चलते हो, तो that has made all the difference। हाँ, और कुछ कहना चाहेंगे? एक दौर था 17 और 18 का दौर था, जो उस सेशन के अंदर मैंने कुछ रिफॉर्मेशन करना चाहा कि मैं इस टीचिंग प्रोफेशन के अंदर कैसे इन्वॉल्व रहूं कि मेरे टीचर को ये लगे कि मेरा प्रिंसिपल इनमें साथ रहता है। हाँ जी। मैंने एक सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, अच्छा, फुल ईयर मैंने उस सब्जेक्ट को लिया। मैंने अपने इकोनॉमिक्स टीचर के साथ कंपटीशन किया कि आपके पास इकोनॉमिक्स में जो बच्चे हैं वो अच्छे बच्चे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो थोड़ा कम समझते हैं वो बच्चे मेरे पास हैं। अच्छा। और उन बच्चों को मैंने साल भर पढ़ाया। अच्छा। मैंने स्कूल का एक रिसोर्स लगभग 2.5 लाख रुपए का मैंने बचाया। ओके। एज ए टीचर मैंने पूरा काम किया, उनके एग्जाम्स लिए, पूरा काम किया और उन बच्चों का 100% रिजल्ट और 70 PI आई। तो जब ये डिस्कस हुआ हमारी कॉन्फ्रेंस में और मुझे जब अवार्ड मिला तो यही क्वेश्चन मेरी मैडम ने पूछा था। अच्छा। कि मैं सत्यनारायण क्या किया आपने? ओके। तो मैंने कहा कि मैडम मैंने क्या नहीं किया, मैंने वो सब किया जो एक प्रिंसिपल को करना चाहिए। मैंने क्लास भी पढ़ाई साल भर, तो कहा कि दिस इज द वंडरफुल टास्क। और सारे प्रिंसिपल देखो इस बात को
कि कोई प्रिंसिपल क्लास पढ़ाता है वो भी 12th की, वो भी उसके बिना सब्जेक्ट। मेरा सब्जेक्ट बायो है, मैं पॉलिटिकल साइंस को पढ़ाया साल भर और मैंने रिस्क लिया। कहते हैं ना रिस्क बगैर गेन नहीं है लाइफ में। एडवर्सिटी मैंने अपॉर्चुनिटी में चेंज किया। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है, स्वेट थ्योरी है, उसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ये सारी चीजें साथ चलती हैं आपकी। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, वीकनेस को पहचानो और उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है उसको कैच करिए और उसके बाद जो थ्रेट्स आती है उसके लिए आप प्लान रखिए, नेचुरली सक्सेस तो आएगी। It's a good step. Yes, It's a good step. और मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे लोगों से तो मेरी मुलाकात होती ही रहती है। ऐसे कि मेरा सबसे बड़ा सपना जिंदगी में मुझे क्या मिला है कि मुझे भगवान ने हमेशा मेरे से 10 साल बड़े लोगों के साथ मेरी दोस्ती करवाई। अच्छा। वो ज्यादा अनुभवी लोगों से मैंने सीखा है, उसे कहते हैं एक्सपीरियंस इन लर्निंग। मैंने जब प्रिंसिपल बना उससे पहले प्रिंसिपलों के साथ बैठता था मैं। अच्छा। मैंने अपने प्रिंसिपलों को काम करते हुए देखा है, फिर उनके साथ मेरा संवाद होता था। जैसे आज आप मेरे संवाद कर रहे हो, मैं पूछता था शाम को बैठ के, सर आपने ये स्टेप ऐसे क्यों लिया, तो फिर वो मुस्कुराते थे, फिर उसका जवाब देते थे और उस जवाब को मैं बड़ा कैश करता था कि हाँ इम्बाइब करूं कि इसको मैं क्या करूं। जब मैं उस चेयर पे बैठता हूँ आज प्रिंसिपल के चेयर पे, तो मुझे मेरी सारी फीडबैक में सारा मैकेनिज्म आ जाता है कि मेरे जो सीनियर्स है वो कैसे काम करते थे, उनकी ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, मुझे पॉजिटिव के साथ चलना है। और हिस्ट्री सेट करने के लिए कुछ करना नहीं होता, अपनी लर्निंग को प्लानिंग के अंदर डालना है और वेट करना है और पेशेंस और कंटिन्यू पेशेंस रखनी है आपको, क्योंकि आप कभी अपने गुस्से में एक अपने एसेट को ना खो दें। कभी कभी ईगो आती है ना, हाँ जी। और ईगो के अंदर आप एक एसेट खो देंगे अपना, उस टाइम आपको झुकना है। और अगर आप झुकने की एबिलिटी रखते हैं ना तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। तूफान आएंगे, तूफान जाएंगे, सब चलेगा, लेकिन अगर आपका वजूद रहेगा तो फिर चीजें बदलेंगी, फिर आएगा। जी। और व्हाट आर योर मेजर अचीवमेंट्स एज अ प्रिंसिपल, मतलब जब से आप प्राध्यापक बने हैं जी जी, तब से मेजर अचीवमेंट आपकी क्या हुई? मेजर अचीवमेंट मैडम मुझे सब कुछ मिला इस केवी काकीनाडा से। मुझे बहुत सारा प्यार मिला पेरेंट्स से, उनके चेहरे में मुस्कुराते हुए देखता हूँ ना, और वो आके मेरे चैम्बर में बोलते हैं सर आप प्लीज जाइए मत यहाँ से, आप ट्रांसफर मत लीजिए, मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा अब की बार 10th में आया, 2 साल और रुक जाइए। और उसके बाद मेरे को रिकॉग्नाइज जो होता है ना एक आदमी के अंदर कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, मेरे सुपीरियर अधिकारी ने ब्लैक एंड व्हाइट में भी मुझे एप्रिशिएशंस दिए हैं। अच्छा। मुझे पब्लिकली अप्रिशिएट किया है, ट्रॉफी दी है, और लिखित में जब भी मेरे ऑफिसर आए मुझे वो लव एंड अफेक्शन, मेरे हर प्रिंसिपल कॉन्फ्रेंस में मेरे को बड़ी इज्जत मिली है और मैं उसको बरकरार रखता हूँ। कि मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं इस बात को कि बेटा जब कोई आपको अच्छा कहता है ना तो और झुक जाइए आप, क्योंकि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ज्यादा हो गई। आज आपने मुझे पहचान दे रहे हो, आज कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मेरे अब कंधे और झुक गए हैं कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मुझे कोई देखेगा तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ज्यादा होगी। आज मुझे आज आपने मुझे और ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको सब बुला देता है। नो, यू आर अ वेरी ओपन पर्सन, इसलिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता जी है। जी जी। तो और आपको नहीं, उसके पीछे मेरे फादर का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। वो एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। अच्छा। मतलब उनको वो सब पता है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है ना वो जानते हैं। मुझे जब पहली बार अवार्ड मिला था 2006 के अंदर, तो मैंने फोन किया अपने पापा को कि मुझे आज बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आज आप, पर था? ये किश्तवाड़ के अंदर में J&K के अंदर में पोस्टेड था। अच्छा। और वो जम्मू का वो रीजन है किश्तवाड़ जहाँ पे मिलिटेंसी कहते थे लोग। ओके। भरा हुआ था मिलिटेंसी 2005-6 के अंदर लोग। और मैं वहाँ इतने खुले मन से घूमता था, खुले मन से काम करता था। अच्छा। तो मुझे जब पहचान मिली तो मैंने फ़ोन किया, तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा बहुत कम उम्र है, किसी ने आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसको याद रखना कि आप जो करते हो ना उससे और अच्छा करना। और वो एक दिन था मेरी लाइफ में, टर्निंग पॉइंट था वो मेरा। मैं बदलता चला गया। वो मैं उस उम्र में, मैं 2006 के अंदर मेरी उम्र मात्र कितनी 30 साल उम्र थी, 30 और 31 साल। और वहाँ से मैंने अपने अंदर और बदलाव लेके आया कि पॉजिटिव मीन्स गो एट पॉजिटिव। और आज भगवान की दया से मैं हर चीज़ को बर्दाश्त कर जाता हूँ। You're very lucky you had a father yes. who could guide you so well also. मतलब बहुत बड़े काउंसलर हैं, हर परिस्थिति में मेरे साथ खड़े होते हैं। अच्छा। हर परिस्थिति में, अगर मैं डिप्रेस हूँ, अगर मैं बीमार हूँ, कोई भी बात है, ही इज ऑलवेज विद मी। मतलब मुझसे के तो मैं पैर की धूल भी नहीं हूँ। सॉरी? उनके तो पैर की धूल भी नहीं हूँ मैं। वो इतने बड़े हैं, वो इतना जानते हो। तो उनसे कब मिलवाएंगे?
जब आप कहेंगे जब ही मिलवा देंगे। वो अभी पीछे आए थे। अच्छा। मेरे फादर सच में ही, हाँ। मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनको। मेरे को एक छोटा सा एक स्टोरी है कि मैंने 2002 में जब केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन किया, हाँ जी। तो मेरे प्रिंसिपल साहब ने मुझे छुट्टी नहीं दिया। छुट्टी एप्लीकेशन लेके गया मैं, मुझे CL चाहिए, छुट्टी चाहिए, घर जाना है। ओके। सर ने छुट्टी नहीं दिया। और तो मैं इसमें था कि मैं कैसे नौकरी करूंगा, मुझे तो घर जाना है। ओके। तो मेरे फादर ने कहा कि आपके प्रिंसिपल के नंबर दो। अच्छा। और ही मेक ए कॉल विद द प्रिंसिपल। अच्छा। उन्होंने कहा कि आपका ही बच्चा है, एक बार उसको घर भेज दो। अच्छा, सो स्वीट। वो प्रिंसिपल साहब संधू साहब थे कि उन्होंने कहा कि जाओ। आप तो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं, अब आपके क्या ड्रीम्स और एम्बिशंस हैं? ऐसा प्रश्न पूछा आपने, हाँ जी। जो दिल से जवाब देना है इसका। जरूर। वो कहते हैं ना, व्यक्ति को जो चीज़ सोने ना दे, अच्छा। और जब आदमी उठे तो भी एक तमन्ना हो, सोए तब भी एक तमन्ना हो, उसे कहते हैं सेल्फ ड्राइव। यस। और मेरा जो मुकाम है ज़िंदगी में हासिल करने का, मैं चाहता हूँ कि हर इंसान को बराबर के सारे जो रिसोर्सेज होने चाहिए उसके पास। हर व्यक्ति को एक हैप्पीनेस होनी चाहिए, कोई गरीब ना छूटे, कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो पढ़ ना पाए। और हर बच्चा खुश होकर ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव रेडिएशन दे, ताकि सारी जिसकी हम कल्पना करते हैं, राम राज्य की कल्पना, वो राम राज्य खाली सपनों का ना हो, जहाँ हर आदमी सच का सामना कर सके, सच बोल सके। और वो मैं चाहता हूँ कि अगर टीचर बहुत अच्छा मिल जाए ना, मेरी लाइफ में अगर सबसे बड़ा रोल है तो मेरे स्कूल टीचर्स का रोल है। मैं जब कभी रूठा तो उन्होंने मुझे मनाया। आज मैं उन बच्चों को सबको मनाता हूँ जिन्हें मुझे मनाया था। मैं कहता हूँ कि जिनने मुझे मनाया, मेरे पास इतने सारे बच्चे दे दिए। एक छोटा सा वृत्तांत है, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था। मेरे साइंस टीचर मुझसे नाराज़ हो गए। अच्छा। प्रैक्टिकल के दिन 25 नंबर की प्रैक्टिकल होती थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि वो आपके नंबर काट लेंगे। उन्होंने मुझे पूरे नंबर दिए, 25 में 25। ओके। और वो मेरी लाइफ में, मैं जब तक टीचर रहा, मैं कभी नंबर काटता ही नहीं था किसी का। अच्छा। मुझे जब आपको कोई पॉजिटिव देगा तो वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आज हम लाइफ चेंज करते हैं ना, हमारा जो वर्क है वो लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन पे है। बच्चे को बदलना है और पॉजिटिव चीज़ें देनी है। मेरा ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन। सो नाउ यू वांट कि राम राज्य हो, सबकी जिंदगी कोहेसिव अप्रोच, सब बराबर, सब सुखी एज प्रिंसिपल मेरा जितना रोल रहेगा, मैं आने वाली 15-20 जनरेशन को बदलने की कोशिश करूँ। और जब जनरेशन सिटीजन में बदलेंगी ना, और जो देश के प्रधानमंत्री उनमें से होंगे, राष्ट्रपति उनमें से होगा, तो मुझे सब मिल गया होगा। अच्छे इंजीनियर्स होंगे, अच्छे डॉक्टर्स होंगे, तो कमी कहाँ है। और एज प्रिंसिपल हम कर सकते हैं। You have still a very long life ahead ये of बहुत you. लंबा। So definitely we wish you all the best. यस मैडम। Now this is our final question, or rather it's a request, एक अनुरोध है कि आप हमारे व्यूअर्स में जो भी हमारे टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए एक एक संदेश दे दीजिए। अगर ज़िंदगी में आप सपना देखते हैं और अपने बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, तो समाज में उन सबको देना सिखाइए। आप गिविंग नेचर अगर आपने सिखा दी और रेस्पेक्ट करना सिखा दिया, और विशेषकर अपने देश के अंदर लड़कियों का सम्मान करना अगर लड़का सीख गया, तो ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे जाएगा बच्चा। तो ये मैं सभी पेरेंट्स से मेरा यही आग्रह है कि अपने बच्चे को सिखाएं कि रेस्पेक्ट द गर्ल्स, रेस्पेक्ट द वीमेन। और वो अगर बच्चा कर पाया तो निश्चित रूप से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और टीचर्स के लिए मेरा संदेश है, टीचर्स का जो प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, वो जनरेशन्स को बदलता है। तो टीचर मस्ट बी ऑलवेज पॉजिटिव, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, एंड गाइड द स्टूडेंट्स जस्ट लाइक देयर ओन किड्स। लव देम एंड मोटिवेट देम, they will continue rise in their life. This is my experience with the generations. So प्यारे टीचर्स, इस बात को समझिए आप कि आपका जो रोल है वो दुनिया में सबसे ऊंचा रोल है। उम्दा पोजीशन पे हैं आप, इसलिए बच्चों को मोटिवेट करिए, उनको प्यार दीजिए, उनको चांस ऑफ एक्सप्रेशन दीजिए। निश्चित रूप से आप जीतेंगे। जिस भी टीचर का बच्चा बड़ा होता है, वो टीचर और ऊँचे पायदान पे होता है। ज़िंदगी को पहचानिए, भगवान ने बहुत कुछ दिया आपको। और बच्चों के लिए जो मौका है, आप 21वीं सदी की जनरेशन है,
जहाँ पे सब कुछ है। जो सपना देखेंगे, विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ के देखिए कलाम साहब की, आपको लगेगा ज़िंदगी में जो सोचेंगे उससे ज़्यादा आपको मिलेगा। सिर्फ आप वैल्यूज़ रखिए अपने अंदर, पॉजिटिव अप्रोच, अपने माता पिता का सम्मान, अपने गुरुओं का आदेश को मानिए आप, और एक्सप्लोर करिए न्यू होराइजन्स ऑफ सक्सेस। जब आप एक्सप्लोर करेंगे और इनोवेट करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत ऊंचे पायदान पे जाएंगे। ये मेरा अनुभव है। जब भी कोई समस्या हो, हर समस्या का समाधान है। कभी डिप्रेस मत होइए, कभी अपने आप को स्ट्रेस में मत लइए, हमेशा खुश रहिए। और खुशी का हमेशा निज़ाम आपके आसपास ही होता है। आपके पेरेंट्स से डिस्कस करिए, टीचर से डिस्कस करिए, हर समस्या आएगी और चली जाएगी, और यू विल बी द ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर इन द लाइफ। सो आई होप every students will take it positive and go ahead in the life. Thank you. Mr. Satyanarayan, on this last wonderful note, we will wind up the interview. It was a really beautiful experience talking to you once again today. And we wish you all the best in your life. And thank you so much for giving your valuable time. And thank you for the guidance that you have given our viewers. मैडम, सबसे पहले मैं और लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूँ। हाँ जी। कि आप जैसे लोगों की समाज को बहुत ज़रूरत है। ओके। समाज आप जैसे मोटिवेटर लोगों से, जो सबको स्पेस देते हैं और ये खोजने का प्रयास करते हैं कि हम दुनिया को क्या दें। आप अपने काम में सबसे उम्दा काम कर रहे हैं। थैंक यू। और लोगों को ये सिखा रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत कुछ देती है व्यक्ति को। सिर्फ विश्वास रखे, पेशेंस रखे, और निश्चित रूप से आपको जितनी ग्रूमिंग आपके पेरेंट ने दी उससे ज़्यादा आप कर रहे हैं समाज के लिए। और एक नारी होने के नाते जब इतना स्टेप ले रहे हैं आप, तो जितनी मेरी बहनें इस प्रोग्राम को देख रही हैं और देखेंगी, उनको निश्चित रूप से लगेगा कि जब अरोड़ा मैडम इतना डिफरेंट काम कर सकती है तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अपने घरों से निकलिए। और सभी व्यूवर्स को ये मेरी कहना है, इस बात को समझिए कि आपको ज़िंदगी में जब भी कोई मौका मिले अपने आप को साइलेंट मत करिए, उदास मत होइए। आपको अपॉर्चुनिटी तलाशती है, उसको मना मत करिए। अरोड़ा मैडम से सीखिए, इन्होंने आज मुझे भी मौका दिया है। और निश्चित रूप से मैं बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आप आए और मुझे जो बोलने का मौका दिया, मेरे एक्सपीरियंसेस मैंने आपसे शेयर किए। निश्चित रूप से विजेता आदमी खुद नहीं होता है, उसके आसपास जो लोग होते हैं वो उसको पहचानते हैं, उसको एक जगह देते हैं, और वो जब आगे बढ़ता है। तो मैं आपका आभारी रहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू मैडम। Thank you so much for your wonderful time. Friends, life throws many challenges to our faces, and because of that we become fearful and we do not move ahead. I would like to tell you, do not let these setbacks or fears hold you back. Face the challenges. Take the challenges head on and face them. See, if you face even one challenge, what will happen that you will develop a strong will within you, because you would have had the courage to face that challenge. And of course, when you do overcome that challenge, what will happen that you will develop a strong sense of self-esteem, you will develop faith in yourself, and you will look forward to further challenges in life enthusiastically. Okay, so enjoy your life, face your challenges. Okay, and enjoy the roller coaster ride called life with Nishi Arora. Thank you. Mr. Satyanarayan, now is time for us to bestow the Admirable Achievers Award to you. Okay, let's go. Hello everyone. We will be starting the award ceremony now. Okay, today amongst us, we have the honor of having Colonel Rohit Sagar, the chairman of the Kendriya Vidyalaya Management Committee, with us. Please give him a big round of applause. A bigger round, he deserves more. That's it. Yes. I would like to say a few words about him. He was commissioned into the Corps of Engineers in 1997. He is an alumnus of NDA and IMA. He has done BE Elect from JNU and MSc from MILIT. I'm right? Okay.
He has an illustrious academic record and has also done the Technical Staff Officers course from DIAT Pune. He has held various command and staff appointments and has been an instructor at CME Pune too. Okay, we request Colonel Rohit Sagar to say a few words, please. So he can say. आप आइए, please. Yes, thank you. बच्चों, जिधर आप खड़े हैं वहीं से सर आके आज हमारे चेयरमैन है, केवी की प्रोडक्ट है. राउंड ऑफ द अप्लॉज फॉर सर फॉर केवीएंस. आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ तक जाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है. वहाँ जो बच्चा आज खड़ा है, सिर्फ उसको मोटिवेट करने के लिए, सिर्फ उसको जगाने के लिए और उसके अंदर एक जज्बात पैदा करने के लिए कि देश आपका इंतज़ार कर रहा है जब एक आप अच्छे सिटीजन होंगे और उसके साथ आपके पास अचीवमेंट्स होंगी. नो डाउट अब हम कोविड-19 से गुजर रहा है देश, दुनिया सारी गुजर रही है, लेकिन काम कभी रुकता नहीं और इंसान कभी थकता नहीं. उसी सीक्वेंस में मैं अपने चेयरमैन साहब के बारे में बताऊं आपको. सर ने अक्टूबर 2020 में ज्वाइन किया और सर के साथ मेरी 4 महीने की इंटरेक्शन है. मैंने जो सर में पाया है, सर इतने ऊंचे मॉरल बैकग्राउंड के हैं कि ऑलवेज सो पॉजिटिव, हर बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और जो भी हमें प्रोत्साहन चाहिए, जिस भी काम में चाहिए, सर ऑलवेज गिव द पॉजिटिव. इट शोज केंद्रीय विद्यालय संगठन inculcate the positive value among the students. So round of the applause for next the achievements of the sir. सर ने IMA में, IMA समझते हैं आप लोग, NDA जानते हैं, सपना देखते हैं आप कि इस लाइफ में कैसे पहुंचते हैं और IMA कहाँ है, ये कभी सोचा है? आज सर बताएंगे सर ने कहाँ से जर्नी की और आपको वहाँ तक ले जाने के लिए सर और हम मिलके क्या कर सकते हैं. ऑलवेज बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड. दुनिया में हर चीज़ आपके लिए मिलेगी. भारत रत्न भी आप लोगों को मिलेगा, पद्मश्री भी आप लोगों को मिलेगा, लेकिन सपने ऊंचे देखना, निश्चित रूप से आप सपनों को साकार कर पाएंगे. सर प्लीज. बच्चों थैंक यू. फर्स्टली आप लोग धूप में खड़े हैं, मैं ज़्यादा समय लूँगा नहीं. मेरे सामने मुझे स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे. मेरे सामने मुझे दिख रहा है कोई आर्टिस्ट, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पेंटर, कोई म्यूजिशियन. हर एक का अपना सपना, हर एक की अपनी डेस्टिनी, अपनी तकदीर. आप लाइफ के उस मुकाम पे हैं कि जहां आपने धीरे धीरे अपने फ्यूचर और आपके फ्यूचर से लिंक्ड है देश का फ्यूचर. अपना भविष्य, अपना फ्यूचर, अपना एम, अपनी तकदीर हर इंसान ने खुद बनानी और फिर उसको हासिल करने के लिए मेहनत करनी है. लाइफ में कोई भी चीज़ बिना मेहनत के, बिना एफर्ट डाले, बिना पसीना बहाए, बिना सैक्रिफाइस किए नहीं मिलती. और कितना पसीना बहाना है, क्या सैक्रिफाइस करना है, कितनी मेहनत करनी है, ये सब निर्भर करता है कि आपने अपना लक्ष्य या अपना एम रखा है कि नहीं. स्पोर्ट्स देखते हैं आप लोग, फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं ना. उसमें भी एम क्या है? गोल करना. चाहे आप फील्ड में कहीं पर भी हैं, आप पूरे टीम में कोई भी पोजीशन पे खेल रहे हैं, अल्टीमेटली आपका एम क्या है कि टीम ने गोल करना है. आपका एम है कि बॉल आगे पास करनी है. अगर वो गोल पोस्ट वहां से हटा दिया जाए तो आप कितनी देर आपस में बॉल पास करते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा. तो सबसे पहला चीज़ है लाइफ में अपने आगे गोल पोस्ट रखिए, अपना लक्ष्य बनाइए, अपना एम रखिए, ताकि आपको पता हो कि आपने जाना किस दिशा में. और फिर आपको मालूम है कि आपके अंदर की खूबी क्या है, आपकी कमजोरी क्या है. आपसे बेहतर कोई नहीं जानता.
और उस लक्ष्य को पाने के लिए आपने अपनी कौन सी कमजोरी को दूर करना है, अपनी कौन सी ताकत का इस्तेमाल करना है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि आपने कितना मेहनत करना है, कितना पसीना बहाना है। सो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट एम है कि आपने अपना एम तय करना है। आपने आगे की तरफ बढ़ने के लिए, अपने एम को हासिल करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट और मेहनत करना है। उसका कोई तोड़ नहीं है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो कुंजियाँ मिलती हैं, गाइड मिलती है ना, शॉर्टकट्स कई बार होते हैं कि ये आंसर लिखने के लिए ये शॉर्टकट है। लाइफ में कहीं अचीव करने का कोई शॉर्टकट नहीं, रास्ता एक ही है। जैसा कि प्रिंसिपल सर भी आपको बता रहे थे कि मैं खुद केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ और 1993 में मैं केंद्रीय विद्यालय आर के पुरम सेक्टर 8 न्यू दिल्ली से मैं पास आउट हुआ था एज अ हेड बॉय। तो उस वक़्त कभी ये सोचा भी नहीं था कि लाइफ में ऐसा मुकाम आएगा या कभी ऐसा अवसर मिलेगा कि मैं स्टेज पे खड़े होके अपने खुद के केवी के साथ में पढ़े हुए बच्चों के साथ एड्रेस कर पाऊंगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट मेरी तरफ से आपको बस एक ही वो है कि हर एक को बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, और जैसा मैंने कहा मेहनत करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। We need one big round of applause once again, please. Okay, now we will be honoring Mr. Satyanarayan Yadav. Mr. Satyanarayan Yadav, this is a small trophy from Admirable Achievers Awards for you, for your immeasurable contribution in the field of education as well as to society. Okay, nice. Yeah. This is for you, Mr. Satyanarayan. This is a certificate also for Mr. Narayan. Please, yes, please come, please. Aye. Okay. And children, remember what we all have to say. We love you, sir. We love you, sir. Yes. And hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Because this is an award to a very, very deserving person, okay? And he has not done anything for achieving the award or as receiving the award. He has done everything for all of you. Whatever जो भी ये कर रहे हैं, आप लोग के लिए कर रहे हैं. कईयों को आज समझ में आएगा, कईयों को कल, कईयों को हो सकता है 5 साल बाद, लेकिन समझ में तो जरूर आएगा. So respect him and believe in him. जब आप वो बोलते हैं आपको कि आप कर सकते हैं, तो आप बिलीव करिए कि आप कर सकते हैं और आप करके भी दिखाएंगे. ओके? मोस्ट वेलकम. And we'd like you to give a small comment about our show. Okay, thank you, sir. Thank you. 27th. Thank you so much, sir. The students who topped in class 10 and 12, could you all please come up? Yes. Ayush Gupta, Suchanda Banerjee, Ashish Chaudhary and Ankit Shaw, please. Yes, scout, guide, clap, ready, go. We'd like you to present them with the medals. Ayush Gupta, class 12, has achieved 95.4%. A big round of applause for him, please.
Hand it to me, I'll give it to you. Keep clapping everyone. This moment is one which he will remember always. Ayush, keep it up. Now Suchanda Banerjee of class 12 who achieved 92.2%. Please a big round of applause for her. Keep clapping, keep clapping. They want to hear these claps forever and ever. Congratulations, Suchanda. We request Ashish Chaudhary of class 10 to come on stage. He got 93.8% in class 10. A big round of applause for him. See, these medals have been created for you all specially, okay? You all must respect the medals, okay? Good boy. Thank you, Ashish. And last but not least, Ankit Shaw of class 10. He has had a tie with Ashish and has attained 93.8% also. Ashish, congratulations. Ankit Shaw. Keep it up. My team members have worked very hard. I request them to come on stage. Noreen Akhtar, my right hand, please come to my right hand. Ranjit Majhi, please come. Shobna Majhi, please come. Okay, sorry, I made a mistake. It is Ranjit Malik, he's the main videographer, okay? This is Shobna Malik. Vakil Ansari, please no, I'm sorry, you have to come, please. Sheikh Sonu, आप पीछे से आ जाइए सामने. He is a sound man in the background. आप है यहाँ. Riti Dhor, you're there. And Chandana Hazra, please come. She has been sitting in the sun while we were inside the hall. You're there? Okay, good. Please give a very big round of applause to my full team. And we must not forget my loving husband who has been my support throughout. Okay? And he does whatever he can for me. This is our full team. Thank you, Mr. Satyanarayan. Thank you, Colonel. Yeah. Thank you everyone for watching this video. I do hope you enjoyed and learned a lot from it. And enjoy watching all the other video series that are on the YouTube channel. Bye. See you. Thanks once again. Bye.